Good morning, students. I am Dr. Indramal Goyal, lecturer of accounts. Today, in this video, we will discuss about payment to the retired partner, payment to the outgoing partner. In my previous video related to retirement and death of partner, we have discussed about how to calculate total amount payable to the outgoing partner. As we have discussed that there are two basic problems on retirement or death of a partner. Number one is calculation of the amount payable to the outgoing partner, and number two is payment to the outgoing partner. Calculation of amount payable to the outgoing partner we have already discussed in previous video by preparing outgoing partner's capital account. Now we will discuss about payment to outgoing partner. Payment to outgoing partner. Or we can say payment to retiring partner. So there are three methods of payment to the retiring partner. Number one is payment in lump sum. एक मुश्त भुगतान, payment in lump sum. एक मुश्त भुगतान, एक साथ सारा रुपए दे देते. Number two is payment in installment. Installments. And number three is payment by annuity. Payment in lump sum means एक मुश्त भुगतान, एक साथ भुगतान. Payment in installment means किस्तों में भुगतान. And payment by annuity means payment of certain amount every year till retired partner expire. So first of all we will discuss about payment in lump sum. एक मुश्त भुगतान. If at the time of the retirement of one of the partner of the firm, financial position of the firm is sound, firm has adequate liquidity, then the total amount calculated by preparing retiring partner's capital account can be paid immediately, and the accounting entry will be outgoing partner's capital account debit to bank. When the total amount is paid instantly, when the total amount is paid immediately, then we won't have to maintain the account of the outgoing partner in the book of the firm by the remaining partners. So payment in lump sum, एक मुश्त भुगतान. जो साझेदार रिटायर हो रहा है फर्म से, वो जितना रुपया मांगता है हमने कैलकुलेट कर लिया और उसको एक साथ सारा रुपया दे दिया जाता है, तो फिर ऐसी स्थिति में फर्म से और उस पार्टनर के बीच में आपस में कोई लेन देन नहीं रहेगा, पूरा हिसाब क्लियर, अकाउंट इज क्लोज. बट यू नो देयर आर 3, 4, 5 पार्टनर. Every partner has contributed a significant amount as capital, and at the time of retirement of the firm, if the entire amount is taken out of the firm's resources, it may create problem of liquidity for the firm. That is why most of the partners in firm offer payment in installment to the outgoing partner, to the retired partner, and his total amount may be paid in certain number of installment of certain amount after a certain time interval with a certain rate of interest. जब एक साझेदार को सेवानिवृत्ति पर उसको दे कुल राशि का भुगतान एक साथ नहीं किया जा सकता, और शेष साझेदार उसे ये ऑफर करते हैं कि आप ऐसा करो, जो टोटल अमाउंट है उसे 4 इंस्टॉलमेंट में या 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट में या हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में ले लीजिए, इक्वल अमाउंट की इंस्टॉलमेंट कर देते हैं और उसमें ब्याज हम आपको एक्स्ट्रा दे देंगे. व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट? It will be
prevailing market rate of interest which will be decided by mutual agreement between the outgoing partner and the surviving or remaining partner. So that will be given in the question. So payment by installment is in case the firm has no adequate liquidity. तो पहले अगर मान लो मैं अकाउंट बनाऊं, पेमेंट इन लंप सम का हो, तो मान लो बी रिटायर हुआ, तो हमने क्या किया, बी कैपिटल अकाउंट बनाया, बी कैपिटल अकाउंट बनाया, और बी कैपिटल में जो हमने निकाला था प्रीवियस वीडियो में, टू बैलेंस पेएबल, ठीक है, तो वो हमने जितना बैलेंस पेएबल था डेट पर्टिकुलर अमाउंट, और वो यहाँ हम लिख देते हैं, और डेट पर्टिकुलर अमाउंट लिखेंगे, और यहां मैंने लिख दिया बाय बैलेंस बीडी। सपोज इट इज 1,43,000 इन टोटल, राइट। तो अब अगर फर्म उसको सारा रुपया एक साथ दे देती है, तो हमारी एंट्री होगी बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,43,000, राइट। तो ये कॉलम से हमारे डेट पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट रुपीज में लिखोगे, फिर आगे डेट पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट रुपीज का। तो ये जो बैलेंस था टोटल अमाउंट पेबल हमने लिखा बाय बैलेंस बीडी, इट्स अ लायबिलिटी फॉर द फर्म, इट इज पेबल टू द आउटगोइंग पार्टनर एंड पेमेंट इन लंप सम में फर्म ने एक साथ सारा पैसा दे दिया बिकॉज फर्म हैज एडिक्वेट बैलेंस। तो फिर हमारी एंट्री बैलेंस को इधर ट्रांसफर किया, वो तो बाय बैलेंस बीडी हो गया, और जब एक साथ पेमेंट कर दिया तब हमारी एंट्री आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, यहाँ हमने बी माना है आउटगोइंग पार्टनर, एंट्री बनेगी बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड अकाउंट विल बी क्लोज। जिस डेट को पेड किया वो डेट आ जाएगी, और जिस डेट को वो रिटायर हुआ उसका हिसाब किया गया वो डेट बाय बैलेंस सीडी के बीडी के सामने आ जाएगी, राइट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हम पहले ही बना चुके हैं। इन दिस वीडियो we are discussing only about payment to the outgoing partner. If total amount is paid in lump sum, the posting will be like this. We will write here B is capital letter, ये पहला नंबर 1। दूसरा है पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। तो सपोज 1,43,000 है इन टोटल, उसमें से उसको बोला 23,000 आपको पेमेंट कर देते, बाकी बचा 1,20,000, उसको हम 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दे देंगे, और आपका बाकी का 3 पैसा 3 इंस्टॉलमेंट में लोन के रूप में हम दे देंगे। तो व्हेन द टोटल अमाउंट इज नॉट पेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ओनली सर्टेन पार्ट ऑफ द टोटल अमाउंट इज पेड एंड रिमेनिंग पार्ट इज पेएबल इन इंस्टॉलमेंट फ्रॉम दैट डेट, द बैलेंस ऑफ विच कैपिटल विल बी ट्रांसफर्ड टू द आउटगोइंग पार्टनर्स लोन अकाउंट and that will be paid in installment. So suppose in second case payment in installment अगर बात है तो टोटल अमाउंट पेबल हम वही लेंगे पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट टोटल अमाउंट पेबल इज 1,23,000, टोटल ड्यू अमाउंट इज 1,43,000, उसमें से जो है ना पेड इमीडिएटली कितना 23,000, तो बैलेंस ड्यू कितना रहा, बैलेंस ड्यू इज 1,20,000, ठीक है। It is payable in 3 equal installments. So number of installment is 3. Number of installment is 3. Then what will be principal amount of each installment? So amount of installment will be
20,000 पे करना है और 3 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, तो एक इंस्टॉलमेंट की अमाउंट क्या होगी 40,000। तो फॉर सेकंड केस अगर हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया और उसका 1,43,000 अमाउंट ड्यू है, उसमें से 23,000 हमने इमीडिएटली पेड कर दिया और बाकी का हम उसको लोन में ट्रांसफर कर दें, तो फिर हम 20 कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, फिर 20 कैपिटल को 20 लोन में कन्वर्ट करेंगे। तब आप देखिए उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। जब हम लोन में ट्रांसफर करेंगे, इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, तो एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें देना पड़ेगा। तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम ले रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, राइट। तो फॉर बी 20 कैपिटल अकाउंट बनाया है और बीस कैपिटल को फिर 20 लोन में कन्वर्ट करेंगे। टोटल अमाउंट ड्यू इज 1,43,000, उसमें से 23,000 आपने इमीडिएटली पे कर दिया, उसकी एंट्री बनेगी 20 लोन अकाउंट डेबिट टू 20 कैपिटल, सॉरी 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 23,000 और बाकी जो बचा 1,20,000 वो 20 लोन में ट्रांसफर होगा। तब 20 कैपिटल को 20 लोन में ट्रांसफर करने की हमारी एंट्री बनेगी क्या 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 20 लोन अकाउंट। तो हम यहाँ लिखेंगे टू 20 लोन अकाउंट और उसमें अमाउंट होगी 1,20,000। तो इस तरह से उसका कैपिटल अकाउंट तो क्लोज हो जाएगा और लोन अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। तो ये टोटल होगी 1,43,000, 1,43,000। एंट्री बनी 20 कैपिटल अकाउंट 20 लोन अकाउंट। तो अब हम है ना 20 लोन अकाउंट को लेंगे, तो यहां से हमारा 20 लोन अकाउंट शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं 20 लोन अकाउंट, इट इज लोन अमाउंट इज 1,20,000, एंट्री है 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 20 लोन अकाउंट। तो बताओ 20 लोन अकाउंट में क्या आएगा बाय 20 कैपिटल, फर्स्ट ईयर का बिगनिंग, क्योंकि 1,20,000 को 3 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। एक इंस्टॉलमेंट की प्रिंसिपल अमाउंट है वो 40,000 हुई और उसको 40,000 की 3 इंस्टॉलमेंट में पे करना, विद इंटरेस्ट पे करना है एट द रेट ऑफ 10%। तो यू विल राइट हमारी एंट्री 20 कैपिटल 20 लोन में हम लिखेंगे फर्स्ट ईयर में बाय 20 कैपिटल, बाय 20 कैपिटल इट इज 1,20,000, राइट। और फिर एंड ऑफ फर्स्ट ईयर अब आप इस पे 1,20,000 का इंटरेस्ट लगाएंगे 10%। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट, व्हाई, क्योंकि 20 loan account is being prepared in the book of the firm and firm will have to pay interest, so interest will be expensive for the firm and it is payable to B's loan. Accounting entry will be B interest account debit to B's loan. तो B's loan आएगा by interest 10% of 1,20,000 for 1 year, क्योंकि हमने 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करना है। हाफ ईयरली होता तो 6 मंथ का ब्याज लगाते हैं, एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे तो 1 ईयर का इंटरेस्ट लगेगा। तो 1,20,000 का 10% इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इज 12,000 और हम इधर लिखेंगे टू बैंक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी कितनी 40,000 को प्रिंसिपल अमाउंट है एंड प्लस 12,000 उसका इंटरेस्ट हो गया 1 ईयर एंड टोटल अमाउंट पेबल इज 52,000 एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ये फर्स्ट ईयर एंड में होगा और फिर हम लिखेंगे टू बैलेंस सीडी कितना बचेगा 80,000। टोटल है हमारा 1,32,000, 132 में 52 का पेमेंट हुआ तो बैलेंस टोटल इज 1,32,000। नाउ व्हाट इज बैलेंस एट एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, इट इज 80,000। तो सेकंड ईयर का बिगिनिंग में इधर आ जाएगा, सेकंड ईयर का बिगिनिंग में जो भी डेट लगा देंगे तो हम यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी
80,000. Now you see rupees 80,000 remain due for the whole second year. So 80,000 is now subject to interest at the rate of 10% for 1 year. 80,000 का एक साल का 10% ब्याज 8,000 पे. अगेन एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बीज लोन. तो एंड ऑफ द सेकंड ईयर हम यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट. नाउ 8,000. पहले फर्स्ट ईयर में 1,20,000 बाकी था तो उसमें 12,000 में ब्याज देना पड़ा. फिर एक इंस्टॉलमेंट दे दी फर्स्ट ईयर के एंड में, फिर रुपए 80,000 ही बाकी रहे. तो अब 80,000 का ही 10% 1 ईयर का देना पड़ेगा, 8,000. और सेकंड ईयर में एंड में हम पेमेंट करेंगे. अगेन एंट्री होगी लीज लोन है, पेमेंट टू बैंक अकाउंट. और कितना हो गया 40,000 को प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन प्लस 8,000 इज फॉर इंटरेस्ट. तो दूसरी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हुआ 40,000 प्लस 8,000 48,000. एंड नाउ अगेन टू बैलेंस सीडी. कितना बैलेंस बचा? इट विल बी 40,000. कैसे आपने टोटल करना 80,000 प्लस 8,000 ब्याज का क्रेडिट टोटल इज 88 एंड आउट ऑफ 88,000 वी हैव ऑलरेडी पेड 48,000. balance is 40,000 and total of both the sides is now 88,000. Now for third year beginning का beginning में हम लिखेंगे यहाँ by balance DD. It's a loan account. It's a liability for the business. So it will be credit balance by balance DD. Now for the third year, at the end of third year, firm will pay 10% interest on 40,000 only, and the entry will be interest account debit to lease loan account. We will write here by interest. Now only 4,000. 40,000 का 10% 1 year का 4,000, and this is third year, and total installment payable were 3 only, and we will write here to bank. Account. 40,000 is the principal amount of the loan plus 4,000 is for interest, and this is the third installment, end of third year, and 44,000 is the total payment. And in this way, the account is closed. So total amount payable to B as a partner was 1,43,000, उसमें से 23,000 पेड कर दिया, 1,20,000 को हमने लोन में ट्रांसफर कर दिया. और जब एक पार्टनर रिटायर होता है, वो अगर खुद अलाइव है, खुद जिंदा है, तो सारी इंस्टॉलमेंट उसी को दी जाएगी. लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सपोज हमने बी को 3 इंस्टॉलमेंट देनी थी लोन के रूप में, एक इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किया और उसके बाद में उसकी डेथ हो गई, तो फिर जो रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट है ना, वो बी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, हेयर को मिलेगी. कैलकुलेशन ऐसे ही रहेगा, बस जिस दिन बी की डेथ हो गई उस दिन बी लोन अकाउंट का नाम बदल के हो जाएगा, बी इज एग्जीक्यूटर अकाउंट, बी इज हेयर अकाउंट, बी इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव. यानी कि आफ्टर डेथ ऑफ द पार्टनर रिटायर, his balance of installment will be paid to his legal representative, and the name of the account will be B's executor loan account. पहले था B's capital account, फिर जब हमने उसको इंस्टॉलमेंट में पेमेंट शुरू करा, 3 इंस्टॉलमेंट तय हुई, तो B's कैपिटल को B's लोन में ट्रांसफर कर दिया. अब अगर सारी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होने से पहले ही अगर B की डेथ हो जाती है, तो B's लोन अकाउंट का नाम बदल के B's एग्जीक्यूटर हो जाएगा. पेमेंट ऐसे ही होगा, जितनी इंस्टॉलमेंट बची है वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दी जाएगी, चाहे उसका सन हो, चाहे उसका वाइफ हो, whosoever is alive, whosoever is the legal representative. Now we will discuss about the third method, payment by annuity. I am sure that you are able to understand. There are 3 methods of payment. और किसी पार्टनर को, रिटायर्ड पार्टनर को पेमेंट करना, उससे पहले हमने अमाउंट कैलकुलेट करी, और कैलकुलेट करने के बाद उसका मेथड ऑफ पेमेंट है वो 3 है, वो हमने डिस्कस किया है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट थर्ड मेथड, पेमेंट बाय एन्युटी, और उसके लिए मैं ये इसे बिठा रहा हूं. राइट, payment by annuity means payment of certain amount
every year till date of death of the retired partner. It is just like a benefit of pension to the outgoing partner. What is annuity? How it is offered, how it is paid, and what will happen if a partner, retired partner, expire before drawing his total amount. So the third method of payment is payment by annuity. The basic feature of annuity is that it is just like the benefit of pension. In case of payment by annuity, a certain amount is paid by the remaining partner to the retired partner every year till his death, irrespective of the balance available in his annuity suspense account. That is why it is called as annuity. Annuity मतलब वार्षिकी. किसी सेवानिवृत्त होने वाले साझेदार को उसके टोटल अमाउंट के बदले में रिमेनिंग पार्टनर ये बोलते हैं कि ऐसा करो, आप ये सारा पैसा फर्म में रख दो, अब हम आपको जो है 15,000 रुपये 20,000 रुपये एवरी ईयर पे करेंगे जब तक आप जिंदा रहेंगे. लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम होती है कि अगर मान लीजिए इसी केस को हम ले लेते हैं, टोटल अमाउंट पेबल टू बी ऑन इज रिटायरमेंट इज 1,43,000, 23,000 उसको हमने इमीडिएटली पे कर दिया और बाकी बचा 1,20,000, उसके लिए बोला उसको हम एन्युटी पे कर देते हैं. तो एन्युटी में फिर क्या होगा, कोई पेमेंट तो ऐसे ही हर साल होगा, लेकिन कितने साल तक करना पड़ेगा ये कोई एश्योरेंस, ये गारंटी नहीं है. यानी कि जब तक वो जिंदा रहेगा, जो रिटायर्ड पार्टनर जब तक जिंदा रहेगा तब तक उसको पेमेंट किया जाता रहेगा. अब इसमें अगर वो जल्दी डेथ हो जाती है, अपने सारे पैसे विड्रॉ करने से पहले ही डेथ हो जाती है, तो बाकी का पैसा उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को नहीं मिलता है. दिस इज द बेसिक डिफरेंस. हम एन्युटी में पैसा ट्रांसफर करेंगे, लोन में जैसे किया वैसे ही करेंगे, एक सर्टेन रेट से इंटरेस्ट भी लगाएंगे, लेकिन अगर एक रिटायर्ड पार्टनर अपना सारा पैसा खाते में से एन्युटी सस्पेंस में से विड्रॉ करने से पहले ही अगर डेथ हो जाती है तो बाकी का पैसा उसके घर वालों को नहीं मिलता है. लेकिन अगर वो लॉन्ग टाइम तक जिंदा रहता है, अपने सारे पैसे उठा लिए जितना एन्युटी सस्पेंस में था, फिर भी अगर वो जिंदा है, तो फिर ऐसी स्थिति में जो रिमेनिंग पार्टनर है जिन्होंने उसको एन्युटी ऑफर किया था उनको है ना अपने लाभों में से देना पड़ेगा. बिकॉज द पेमेंट ऑफ द एन्युटी इज रिलेटेड टू द लाइफ और सर्वाइवल ऑफ द रिटायर्ड पार्टनर. इफ ही सर्वाइव फॉर द लॉन्गर टाइम, इवन आफ्टर द ड्रॉइंग ऑफ हिज एंटायर बैलेंस, the next installment or annuity will be paid out of the profit of the firm by the remaining partner, and they have to repent on their decision. And sometime a retired partner expire after 2 years or 3 years, and there is a significant amount in his annuity suspense account, so that will be distributed by the remaining partner in their P&L ratio. It will not be paid to the legal representative of the retired partner. तो ये इसमें अनसर्टेनिटी है. लॉन्ग टाइम तक जिंदा रहे तो रिटायर्ड पार्टनर को बहुत फायदा होगा, खुद के सारे पैसे उठा लिए, ब्याज भी कमा लिया और अभी भी उसको पेंशन की तरह वो एन्युटी मिलती रहती है. और अगर जल्दी मर जाता है तो फिर ऐसी स्थिति में उसका जो पैसा था 1-2 इंस्टॉलमेंट 3 इंस्टॉलमेंट उसको मिली और अब डेथ हो गई, वो सारा पैसा उठा ही नहीं पाया तो उसको भी नहीं मिला, वो उसके घर वालों को भी नहीं मिलेगा. बट ये एक जोखिम वाला बात है. So it is a matter of agreement between the outgoing partner and the remaining partner. So when the annuity is offered, it is not necessary to accept the annuity. ये दोनों पार्टनर आपस में अगर सहमत हो जाते हैं तो एन्युटी स्वीकार हो जाती है, तो उसका एक एग्रीमेंट बन जाता है. अब इसलिए इसको एन्युटी सस्पेंस अकाउंट बोलते हैं. व्हाई? बिकॉज देयर इज ए सस्पेंस. अगर वो लॉन्ग टाइम तक जिंदा भी रह सकता है, नहीं भी जिंदा रहे, बिकॉज यू नो लाइफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज अनसर्टेन. कभी भी किसी का भी डेथ हो सकती है, जल्दी भी हो सकती है, लेट भी हो सकती है. नो वन नोस, गॉड नोस, राइट? तो सपोज बी इज रिटायरिंग एंड टोटल अमाउंट पेबल टू हिम इज 1,43,000 एंड 23,000 इज पेड इन इंस्टॉलमेंट एंड रिमेनिंग अमाउंट इज 1,20,000 और उसको एन्युटी दिया गया. सपोज एन्युटी
एन्युटी ऑफ रुपीज 15,000 with 10% interest. 10% interest is offered. So suppose partner are A, B and C and their ratio is 5:3:2 and B retire from the firm and total amount payment to B is 1,43,000. 23,000 is paid to him immediately and balance is transferred to his annuity account. तो जो B's capital account हम बनाते हैं, it will be like this, B's capital account. और उसमें हमने लिखा था बाई बैलेंस शीट जो 1,43,000, उसमें से हमने 23,000 पे कर दिया इमीडिएटली टू बैंक अकाउंट 23, और अब बाकी जो 1,20,000 बचा उसको एन्युटी में ट्रांसफर करना। तब हमारी एन्युटी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज एन्युटी अकाउंट, बीज एन्युटी सस्पेंस और ये 1,20,000 हमने वहां ट्रांसफर कर दिया। अब बीज कैपिटल अकाउंट बंद हो गया और बीज एन्युटी सस्पेंस अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा फर्स्ट ईयर। राइट, और अब जब ये बीज कैपिटल अकाउंट बंद होगा तो बीज एन्युटी अकाउंट बनेगा, हम यहाँ बीज एन्युटी अकाउंट खोलेंगे। तो ये क्लोज और यहां बनाएंगे बीज एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट एंट्री क्या बनी, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज एन्युटी अकाउंट, तो बीज एन्युटी में आ जाएगा बाय बीज कैपिटल, बाय बीज कैपिटल अकाउंट it is 1,20,000 फर्स्ट ईयर। और अब फर्स्ट ईयर का एंड में हम इंटरेस्ट लगाएंगे 10% और सपोज वो 2 ईयर तक की सर्वाइव करा मिस्टर बी और डेथ हो गई, तो बाकी का पैसा जो है वो ए और सी में बांट दिया जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, वी विल राइट हियर बाय इंटरेस्ट 12,000 का 1,20,000 का 10% 12,000 रुपए हुआ, हमने उसको पेमेंट किया फर्स्ट ईयर में एंड में टू बैंक 50,000। तो अब आप देखिए हमने इंटरेस्ट तो लगाया, इंटरेस्ट का जोड़ने के बाद टोटल हो गई 1,20,000, लेकिन हमने पेमेंट 15,000 रुपए एवरी ईयर करना। तो हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सी 132 में से घटाओ 50,000, तो क्या होगा 1,70,000। तो ये फर्स्ट ईयर एंड में है ये स्थिति, ठीक है। तो फिर सेकंड ईयर में हम यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी 1,70,000। तो एंड ऑफ सेकंड ईयर क्या हुआ, हम यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट दूसरी इंस्टॉलमेंट दी, अब इसका ब्याज होगा 11,700, टोटल अमाउंट 0,0,7,8,2,1। और अब सेकेंड ईयर के एंड में अभी टू बैंक हमने दूसरी इंस्टॉलमेंट दी फिर 15,000 और हमने यहाँ लिखा टू बैलेंस सी the amount is 1,28,700 and it will be 1,13,700, right? Third year from यहाँ लिखेंगे by balance E it is 1,13,700। अब थर्ड ईयर के बिगिनिंग में मान लीजिए बी की डेथ हो गई, तो अब ये जो पैसा है 1,13,700
उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को नहीं मिलेगा। और ये ए और सी में 5:3 में बांट देंगे। तो थर्ड ईयर डेट ऑफ डेथ ऑफ बी, डेट ऑफ डेथ ऑफ बी क्या होगा, ये जो रुपए हैं ए और सी में बांट देंगे और इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। हम यानी 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए को क्या मिलेगा, ए को मिलेगा 5:2 का मतलब 5/7। तो ए विल गेट 5/7 ऑफ 1,13,700 यहाँ लिखिए। और सी को मिलेगा क्या, सी को मिलेगा 2/7 ऑफ 1,13,700। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और आप यहाँ लिख देंगे और ये खाता बंद हो जाएगा 1,13,700 and 1,13,700. So if a partner expire before drawing his entire amount from his annuity suspense account, then the balance of annuity suspense account is distributed or credited to the remaining partners account in their P&L ratio. And if he survive for long time period और यहाँ कुछ बैलेंस भी नहीं बचता है या बहुत कम बैलेंस होता है और फिर उस पर हमने इंडेक्स भी लगाया एंड ऑफ द ईयर, तो सपोज यहाँ लास्ट में ना 2,000 रुपये बचे बाई बैलेंस बीडी, अभी उसका डेथ नहीं हुई बी की, हमने उस पर इंटरेस्ट लगाया 10 में से 200 रुपये, तो 2200 हुआ, हमें उसको एन्युटी देनी है 15,000। सो इन दैट ईयर 15,000 तो हमें पे करना है, हमारे टोटल हुआ ओपनिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट 2,200, तो पीछे जो बचा 12,800 रुपये वो हम यहाँ लिखेंगे बाई पीरियड, यानी कि फर्म को अपने लाभ में से देना पड़ेगा और टोटल मिला के 15,000 रुपये वो इधर पेमेंट होगा। तो दैट विल बी द फर्स्ट ईयर इन विच देयर वाज ए लॉस टू द रिमेनिंग पार्टनर। और अगले सालों में तो सब में फिर क्या होगा, बाई पीरियड 15,000 टू बैंक 15,000 टू द retired partner Mr. B if he survived for a long time even after drawing his entire amount. Hence, these are the 3 methods of payment to the retired partner. Number 1 is payment in lump sum, number 2 is payment in installment, and number 3 is payment by annuity. तो payment by annuity is just like a benefit of pension. अगर हम लोन के रूप में इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं और अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती जल्दी तो उसके घर वालों को पेमेंट कर दिया जाता है रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट का। लेकिन अगर उसकी एन्युटी के माध्यम से पेमेंट करते हैं और फिर अगर किसी की जल्दी